Hello everyone, welcome to Alifair Academy. Welcome to another lecture of Engineering Mathematics 1. So in the last lecture we have discussed about indeterminate forms, and before that we have discussed about differentiability of the function. And today we are going to discuss very important topic which is called Rolle's theorem, or you can say Rolle's theorem, which is about the differentiability of function. Actually these are three fundamental theorems. One is by name Rolle's theorem, or you can say Rolle's theorem, and another two Lagrange's theorem or Cauchy's theorem. These two are called mean value theorem. This is applicable for one function and this is applicable for two functions. So one by one we will see all the three important theorems regarding to the differentiability of the function. And in this lecture today we are going to discuss very important topic which is called Rolle's theorem. So first of all, let us see the statement of Rolle's theorem. इसका स्टेटमेंट क्या है उसको आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा, मैं आपके लिए पढ़ देता हूं. क्या लिखा है स्टेटमेंट? if fx this fx is continuous, this fx is continuous and differentiable, this fx is continuous and differentiable function in the interval ab, first interval given as ab, such that, this is most important criteria, such that f of a is equal to f of b, f of a is equal to f of b, f a is equal to f b, then f dash c will be equal to 0, f dash c will be equal to 0 whenever a is less than c is less than b. अब इस बात का मतलब क्या है कि जो c है ना, c, the value c lies between a and b, जिसके ऊपर f dash c 0 हो. देखो इसमें तीन बातें हैं जो मैंने अंडरलाइन की है उसको ध्यान से समझना. पहली चीज है कॉन्टिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल. द फंक्शन शुड बी कॉन्टिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल, ये पहला स्टेटमेंट हुआ. सेकेंड स्टेटमेंट इज f of a is equal to f of b, मीन्स एंड पॉइंट्स के ऊपर फंक्शन की जो वैल्यू है वो सेम होनी चाहिए. एट द टर्मिनल पॉइंट्स, एट द एक्सट्रीम पॉइंट्स, द वैल्यू ऑफ द फंक्शन f of a should be equal to f of b. And the last important thing, third one is f dash c is equal to 0. f dash c क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए, जहां c की जो वैल्यू है, the value of c lies between a and b, and sometimes we say that c belongs to a comma b. Both the statement have same significant values. मतलब c की वैल्यू a और b के बीच में कहीं लाई करेगी, या a less than c less than b, both statements have same significance. तो ये है आपका रोल्स थ्योरम का स्टेटमेंट. देखो एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसको आपको समझना होगा. यहां क्या है कि कोई भी कर्व अगर बहुत ही शार्प है लाइक दिस, तो उसके ऊपर आप टेंजेंट नहीं खींच सकते, बिकॉज इफ यू ड्रॉ अ टेंजेंट अपॉन दिस कर्व लाइक दिस, या ऐसे कोई टेंजेंट बनाने की कोशिश करेंगे, देन दिस कर्व विल इंटरसेक्ट लाइक दिस और लाइक दिस. ठीक है, या तो वो इसको ऐसे इंटरसेक्ट कर देगा या ऐसे इंटरसेक्ट कर देगा. सो दिस टेंजेंट cannot be drawn on a sharp curve. This is sharp curve. ठीक है, this is sharp curve. So tangent can be possible only those curves which are smooth curves. जिन कर्व के ऊपर आप टेंजेंट बना सकते हैं वो हमेशा कैसे होते हैं? स्मूथ कर्व्स होते हैं. सो टेंजेंट कैन बी ड्रॉन ऑन स्मूथ कर्व्स लाइक दिस. इस तरीके से किसी टेंजेंट को ड्रॉ किया जा सकता है. ठीक है, दीज आर टी, दिस इज कॉल्ड टी, टेंजेंट. सो दिस टाइप ऑफ कर्व इज स्मूथ कर्व. कैसा कर्व है ये? स्मूथ कर्व. सो अपॉन स्मूथ कर्व you can draw multiple number of tangents, multiple number of the lines which touches at the single point, not intersect. ये क्या करने लग जाएगा यहाँ पर? ये intersect करेगा. क्या कर जाएगा ये? Intersect.
तो ये इंटरसेक्ट कर सकता है, बट यहां पर क्या होगा, ये टच, ओनली दिस विल टच द लाइन, ये कर्व जो है वो टच करके जाएगा, यहां पर ये कर्व आगे भी जा सकता है। दैट्स वाई स्मूथ कर्व के ऊपर आप बहुत सारी टेंजेंट खींच सकते हैं। एंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट at any point you can understand that y minus y1 is equal to dy upon dx into x minus x1. So this tangent is possible. ये tangent क्या है, ये possible है, possible only if dy by dx exist. ये है इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है वो ये है. So please try to understand these two concepts before the proof of Rolle's theorem, that at the smooth curves we can draw a multiple number of tangents. So tangent is possible only when this dy upon dx, this term dy upon dx is possible. Due to the existence, uniqueness, finiteness of this dy by dx, this tangent can be possible because point is always there. Point तो इस कर्व के अंदर सब जगह है ना, बट ये dy by dx अगर एग्जिस्ट नहीं करेगा तो टेंजेंट एग्जिस्ट नहीं करेगी. सो इन दिस सिनेरियो dy by dx फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल. अब यहां फंक्शन क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएबल हो जाएगा. तो dy by dx एग्जिस्ट मींस द फंक्शन विल बी डिफरेंशिएबल. जब कभी भी dy by dx एग्जिस्ट करता है तो हम क्या कहते हैं कि फंक्शन डिफरेंशिएबल हो जाएगा. दैट इज f will be differentiable, okay, differentiable. And similarly, and hence हमने डिफरेंशिएबिलिटी में टॉपिक पढ़ा था कि अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो कॉन्टिन्यूअस भी होगा, एंड हेंस f कॉन्टिन्यूअस. ठीक है, बात समझ में आ रही है. f will be differentiable and hence f will be continuous. तो ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आपको इस रोल्स थ्योरम में लगाना है. तो मैंने आपको स्टेटमेंट देखो दिखा दिया, क्या है, इफ fx इज कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल इन द इंटरवल ab. वहां क्लोज और ओपन का भी कॉन्सेप्ट है, लेकिन आपको उतना टेंशन नहीं लेनी, बस जस्ट ओपन लेकर आप इसको लिख सकते हैं. हाँ, f of a इक्वल टू f of b, देन f dash c, देयर विल बी अ पॉइंट c at which डेरिवेटिव विल बी 0. तो देखो इसके प्रूफ के लिए मैंने आपके लिए पहले ही इस कॉन्सेप्ट को समझाने के बाद इसका प्रूफ मैंने लिख दिया है ताकि आप इसको समझने में पूरा ध्यान लगाएं. देखिए क्या है, ध्यान से सुनना. ये है एक्स वाई प्लेन और इसमें y इज इक्वल टू एफ एक्स कोई एक फंक्शन है. देयर इज अ फंक्शन y इज इक्वल टू एफ एक्स बिटवीन x इक्वल टू a टू x इक्वल टू b. और ये वो कर्व है, ये वो ग्राफ है जो रोल्स ने अपने थीसिस में बनाया था, जो सभी बुक्स में ऐसा ही बना हुआ है आज भी. सो इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम x इक्वल टू a and terminating to x equal to b, and this is the increasing then decreasing, फिर again increasing and then decreasing. So at x equal to a, at capital A point, y on x axis is always 0, so this y will be 0. But this y is not only y, this is the value of function y is equal to fx at x equal to a. यहां x equal to a पर x axis पर y की वैल्यू 0 है, बट ये y नहीं है, ये y x की वैल्यू a रखने पर f of a जो आएगा वो y है. Similarly, at x equal to b, again the point is on x axis, so y will be 0, but this y is not only that particular y, but on substituting x equal to b in this function you will get f of b. तो ये वो वाला y है. क्या आपको बात समझ में आ गई? तो ये दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको इसमें समझने हैं. There is another point C in between A and B, which may be some coordinates C, D. This is a smooth curve. क्या है ये? एक smooth curve है on which number of tangents can be drawn. तो ये जो lines आपको दिखाई दे रही होंगी येलो वाली, ये T है, T for tangents. ये tangents है, ठीक है, बात समझ में आ गई. Okay, now concept is quite clear that the tangent can be drawn on smooth curve. सो हम सबसे पहले f को एक फंक्शन ही कंसीडर करते हैं इन द इंटरवल.
So let f be any smooth curve defined in the interval a comma b. Defined in the interval a comma b. अब चूंकि स्मूथनेस की वजह से ये जो एक वर्ड हमने लिखा यहां स्मूथ, ड्यू टू दिस वर्ड स्मूथ, इसकी वजह से हम कह पाएंगे कि उसके ऊपर सेवरल टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन. ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रॉन्ग वर्ड है स्मूथ. So on smooth curve several tangents can be drawn. So at any point the equation of tangent may be y minus y1 equal to dy by dx into x minus x1. Can you write the equation of tangent like this? क्या लिखा है? On the smooth curve several tangents can be drawn. कॉन्सेप्ट यही है कि किसी भी स्मूथ कर्व के ऊपर आप बहुत सारे टेंजेंट बना सकते हैं. So this is the equation of tangent at any point x1 y1. Okay. तो ये हुआ y minus y1 equal to dy by dx x minus x1. This tangent exists. It is possible only due to the fact that dy by dx exists. dy by dx will be finite and unique. That's why dy by dx exist करने से क्या होगा? Function fx is differentiable and hence fx is continuous. तो क्या बात समझ में आ गई? ये वाला जो कॉन्सेप्ट अभी समझाया आपको, तो इस कॉन्सेप्ट से ये पूरी प्रॉपर लैंग्वेज फॉर्म में हमने ऐसे लिखना है. क्या लिखा? y minus y1 dy by dx x minus x1 is the tangent which can be drawn on any smooth curve. This tangent is possible because the function will be differentiable and every differentiable function is continuous. तो ये पहला स्टेटमेंट तो इस तरीके से कंप्लीट होता है. दूसरा स्टेटमेंट कैसे होता है? देखो, at a x equal to a y equal to 0, at b x equal to b y equal to 0. Now you can see f of a is equal to 0, f of b, b पर x की वैल्यू b रखने पर f of b is also equal to 0. So both are equal to same, equal to 0. रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल ही तभी होती है जब फंक्शन f of a is equal to f of b is equal to 0. मतलब दोनों वैल्यू इक्वल होनी चाहिए. तो देखो क्या लिखा हमने, एट a कैपिटल a कॉमा 0 पॉइंट है, x की वैल्यू a है और y की वैल्यू क्या है? f of a which is equal to 0. तो f of a equal to 0 हुआ. Similarly, at the point b, b comma 0, this is comma, right? ये comma है यहाँ पर. b comma 0, like this. x की वैल्यू है b और y again 0 है due to x axis, but f of b वहां पर y की वैल्यू है is equal to 0. Thus you can see both f of a and f of b are equal and both are equal to 0. तो ये सेकंड स्टेटमेंट कंप्लीट हो जाता है, f of a equal to f of b. नाउ थर्ड कॉन्सेप्ट देखो क्या है. थर्ड कॉन्सेप्ट ये है कि अगर किसी फंक्शन में आप कांस्टेंट रखेंगे, फॉर एग्जांपल देखो जैसे है f of x is equal to x square, और अगर आपने इसमें x equal to 3 ये कांस्टेंट रखा, this is like constant. So if you put 3 here, so f of 3 is equal to 3 square and it will become 9, and 9 is again constant. So if you differentiate any constant, if I differentiate this constant, then the derivative of constant क्या होगा जी? Derivative f dash of this 3 will become 0. तो ये पूरा कॉन्सेप्ट इसके ऊपर बेस्ड है, ठीक है, इस छोटे सी बात के ऊपर. तो क्या लिखा है देखो, ध्यान दो इधर. एट द मिडिल पॉइंट और इन बिटवीन पॉइंट x इक्वल टू सी एक कांस्टेंट है जो a और b के बीच में है. ये जो ग्राफ है, इस ग्राफ में आप देख सकते हैं x इक्वल टू सी इज दिस वैल्यू, x इक्वल टू सी ये वैल्यू है, एंड दिस वैल्यू c इज कांस्टेंट इन बिटवीन a एंड b, a और b के बीच में. तो जब आप इसमें वैल्यू रखेंगे फंक्शन के अंदर f of c, then this value f of c will also be constant and the derivative, its derivative f dash c is always equal to 0. तो इस तरह से f dash c की वैल्यू कितनी हो जाती है? 0 हो जाती है. दिस इज योर थर्ड स्टेटमेंट ऑफ रोल्स थ्योरम. तो f dash c की वैल्यू 0 है. तो थर्ड चीज कांस्टेंट की हेल्प से प्रूफ की जा रही है. अब इसका एक छोटा सा सिग्निफिकेंस है कि क्या वैल्यू है, क्या मतलब है इसका. देखो f डैश क्या होता है? डेरिवेटिव है, dy by dx है. कहां पर? जहां x की वैल्यू c थी. और दूसरी बात, हम इसे m भी तो कहते थे, m, एंड m हम tan थीटा को भी कहते हैं, m इक्वल टू tan थीटा. सो tan थीटा इक्वल टू 0, एंड फ्रॉम दिस यू कैन फाइंड द वैल्यू थीटा इक्वल टू 0.
तो थीटा की वैल्यू जब 0 हो जाएगी तो इसका मतलब क्या है कि जो टेंजेंट है वो पैरेलल होगी एक्स एक्सिस के। टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, क्योंकि थीटा एंगल होता है मेड बाय द टेंजेंट विद द एक्स एक्सिस, तो इस तरह से एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। इन दिस वे दिस इज द प्रूफ ऑफ रोल्स थ्योरम। एक बार फिर से रिव्यू कर लीजिए। क्या कहा कि स्मूथ है कर्व तो टेंजेंट होगी, दैट्स व्हाई dy by dx एग्जिस्ट, दैट्स व्हाई फंक्शन डिफरेंशिएबल एंड कॉन्टिन्यूअस। फिर से सुनो, सीरीज बनाओ। फंक्शन स्मूथ सो टेंजेंट एग्जिस्ट ड्यू टू dy by dx एग्जिस्ट, due to which fx is differentiable and hence it is continuous. Clear? Second point, f equal to fb, x equal to a, y 0, y is not only 0 but f of a equal to 0, x equal to b, then y 0, then y is not only 0 but this is the value of f at x equal to b, yani f of b equal to 0. And now in this scenario you can write that at x equal to a, f of a equal to 0, and at x equal to b, f of b is also equal to 0, and in this way you can say f of a equal to f of b, both are equal to 0. Similarly, the last concept, x equal to c. C is a constant. If you put something constant in the function, then it will also become constant, right? So f dash c is equal to 0. F dash c is equal to 0. और ये इसका significance है that f dash c 0 means tangent is always parallel to x axis. इसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं, जरा मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। देखो, एक सवाल ये लिखा है, देखो फर्स्ट फंक्शन जो स्टेटमेंट है कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल, वो तो आप फंक्शन की नेचर को देखकर लिख देना। जैसे सवाल लिखा, वेरीफाई रोल्स थ्योरम फॉर द फंक्शन f of x equal to x square minus 5x plus 6 in the interval 2, 3. सो इसमें क्या करना है आपको? सॉल्यूशन। गिवन दैट, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट गिवन दैट द गिवन फंक्शन f of x is equal to x square minus 5x plus 6 being algebraic यानी x वाला फंक्शन है algebraic, is continuous and differentiable, is continuous and differentiable in the given interval which is 2, 3. So first thing you have to write in this way. पहले स्टेटमेंट को बस उसके नेचर के हिसाब से लिख देना है. नेक्स्ट पॉइंट इज टू फाइंड एफ ए एंड एफ बी. सो यू हैव टू राइट एफ ऑफ ए मीन्स f of 2. So substitute x equal to 2 in this given function. So it will become 4 minus 5 into 2 and plus 6. So you can see here 4 plus 2 10 and minus 10 is equal to 0. Right. Next is f of b, which is f of 3, and if I put 3 in this function, so it will become 9 minus 5 into 3 and plus 6. So you can see here this is 15 and again minus 15, so it will become 0. So f of a is equal to f of b. From this scenario you can write here, so f of a is equal to f of b. ये दोनों बराबर हो जाएंगे. f of a is equal to f of b, right? And both should be equal to 0. ये रोल्स थ्योरम की नेसेसरी कंडीशन है कि दोनों इक्वल तो होनी चाहिए, बट along with that they should be equal to 0. ये दोनों 0 भी होने चाहिए. Next is for differentiability. For c we will write for c. तो इसके लिए क्या करना है आपको? Differentiate f with respect to x. So you will get f dash x is equal to, and which is equal to 2x minus 5, right? 2x minus 5. Then put the value c here. क्या करना है? So f dash c is equal to 0. It implies that 2c minus 5 is equal to 0. And from this you can find the value of c, which is 5 by 2. c equal to कितना आएगा? 5 by 2. ठीक है, 5 by 2, or you can write it as 2.5. So obviously you can see that 2.5 is greater than 2 and less than 3.
सो लिखेंगे सिंस 2 लेस देन 2.5 लेस देन 3, दैट इज A less than C less than B is verified like this. Hence Rolle's theorem is verified for given function, okay. So I mean to say that you have to write each and every term very neat and clean कि किस तरह से आपको इस फंक्शन में रिप्रेजेंटेशन करना है, अपने आंसर को कितना ब्यूटीफुली एक्सप्लेन करना है, यही आपको बस इस पूरे के पूरे सब्जेक्टिविटी का इस टॉपिक के अंदर आपको समझ के लिखना है, ठीक है। मतलब आप पहले जो गिवन इंफॉर्मेशन है उसमें कॉन्टिन्यूस डिफरेंशिएबल उसके नेचर के हिसाब से लिख दीजिए, और उसके बाद आप इसमें एफ ए एफ बी निकालिए, और फिर उसके बाद डिफरेंशिएशन करिए, वहां सी रखिए, and then find the value of C. If this C lies outside the given interval, then function is never Rolle's theorem applicable, ठीक है। यहां पर C की वैल्यू अगर आउटसाइड हो जाएगी then function will not verify Rolle's theorem, लेकिन ये C की वैल्यू मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में A और B के बीच में ही आती है, ओके। तो समझ में आ गया पूरा सिनेरियो कैसे होता है। एक क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, देखो उसका भी आप देख लीजिए, यहां पर ये लिखा है, ये गिवन फंक्शन वेरीफाई रोल्स थ्योरम फॉर द फंक्शन f of x is equal to log a square plus ab upon a plus b into x। ये a स्क्वायर नहीं होगा भाई, ये x स्क्वायर होगा, दिस विल बी लाइक x स्क्वायर, ठीक कर लो इसको, दिस इज x स्क्वायर प्लस ab अपॉन a प्लस b इंटू x। तो क्या करें, देखो इसके आंसर को बस एक लाइन में यहां देखो गिवन फंक्शन ऐसे लिखना, given function log x square plus ab upon x into a plus b in ab is logarithmic function, so it is continuous and differentiable। आपको continuity differentiability नहीं दिखानी है, you have to find the value of c, main focus उस पर होना चाहिए, c lies between a and b, वो important है। तो continuity differentiability is not the main focus of this topic Rolle's theorem, but you have to find one c at which f dash c will be 0। so यहाँ देखो क्या करना है, ये तो पहला कॉन्टिन्यूस डिफरेंशिएबल आप डायरेक्ट फंक्शन की नेचर से लिख देंगे, log a, देखो f of a निकालेंगे, देन पुट द वैल्यू x इक्वल टू a हियर, सो इट विल बिकम a स्क्वायर प्लस ab, अगेन a इनटू a प्लस b, और यहां से आप a कॉमन ले लीजिए, a कॉमन, देन यू कैन सी बोथ आर सेम, सो ये कैंसिल हो जाएंगे, तो log 1 कितना होता है, 0 हो जाएगा। सिमिलरली हाँ जी, सिमिलरली you can see here f of b log, you can put x equal to b, so b square plus ab upon b into a plus b, अगेन यहां से b कॉमन ले लीजिए, तो b plus a plus b, both are same, so they will also be cancelled, दोनों कैंसिल हो जाएंगे ना, बात समझ में आ गई इस तरीके से। so ये कैंसिल हो गया सर, okay, again log 1 equal to 0, so finally you can see that f of a equal to f of b is equal to 0, ये दोनों के दोनों इक्वल हैं, और इक्वल भी किसके हैं, 0 के इक्वल है, ठीक है। तो ये वाली कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, दैट f of a f of b इक्वल तो आते हैं लेकिन इक्वल आते हैं 0 के। आफ्टर दैट यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ c फॉर c, तो इसका ना पहले आप log की प्रॉपर्टी से सेपरेट कर लीजिए टर्म्स को। देखो न्यूमरेटर log m अपॉन n की प्रॉपर्टी आपने पढ़ी होगी, log m अपॉन n है ना, क्या था, log m अपॉन n इज इक्वल टू log m माइनस log n, पढ़ा है ना ये सब तो आपने, log m अपॉन n की प्रॉपर्टी log m माइनस log n। so with the help of this property we can change the positions of the function, like देखो ये न्यूमरेटर है वो ऊपर, और डिनोमिनेटर जो नीचे वाला वो माइनस में चला जाता है, तो क्या किया हमने, log x स्क्वायर प्लस ab, दिस इज न्यूमरेटर, माइनस log x, और साथ में देखो मल्टीप्लाई है ना, यहाँ पर ये मल्टीप्लाई, तो ये बाहर तो माइनस रहेगा, अंदर प्लस आएगा, तो प्लस माइनस माइनस हो गया, या फिर सीधे बोलो कि अपॉन वाले नेगेटिव में पहुंच जाते हैं सारे, ठीक है। यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो log x प्लस ये, तो log x इंटू ये बन जाएगा अपने आप, दैट्स व्हाई वी हैव टू सेपरेट ईच एंड एवरी टर्म्स बाय द प्रॉपर्टी ऑफ log। उसके बाद डिफरेंशिएशन f डैश x, तो क्या होगा, देखो पहले log का 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस ab, x स्क्वायर का 2x, फिर log 1 अपॉन x, और इसमें कोई x नहीं है, दैट्स व्हाई 0। नाउ पुट द वैल्यू
x equal to c. So 2c upon c square plus ab and minus 1 upon c equal to 0. Then find the value of c. 1 by c को राइट में लेके जाओ, देन क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या होगा 2c स्क्वायर लाइक दिस, 2c स्क्वायर इक्वल टू c स्क्वायर प्लस ab, देन c स्क्वायर इक्वल टू ab एंड c इज इक्वल टू ab. तो ये क्या होता है आपको पता है, ये ज्योमेट्रिक मीन होता है, GM ज्योमेट्रिक मीन. तो ज्योमेट्रिक मीन होगा ना ये, तो फिर वो जरूर a और b के बीच में लाई करेगा. जब a और b के बीच में लाई करेगा तो फिर कह देंगे कि फंक्शन रोल्स थ्योरम को एप्लीकेबल या वेरीफाई करता है. कितना सिंपल था, आसान था ना. बस इसमें आपको लॉग की प्रॉपर्टी लगाने के बाद डिफरेंशिएशन करना है. लॉग की प्रॉपर्टी पहले आप लगा लीजिए और उसके बाद आप इसका डिफरेंशिएशन करना. ठीक है, समझ में आया मैं क्या कह रहा हूं. आप लॉग की प्रॉपर्टी लगाना फिर उसके बाद डिफरेंशिएशन. ठीक है, ऐसे. तो इस तरह से 2 सवाल मैंने कराया आपको. सी यहां पर GM ज्योमेट्रिक मीन आया रूट AB, दैट्स व्हाई इट विल आल्सो लाई बिटवीन A एंड B. मीन जो होते हैं हमेशा बीच में ही लाई करते हैं. अब इसी के साथ मैंने आपके लिए ये क्वेश्चन बनाया है 3 असाइनमेंट में. टू वेरीफाई रोल्स थ्योरम फॉर दिस x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इन 1 2, और ये तो रिपीट हो गया, कुछ और चेंज कर देते हैं इसको. x स्क्वायर माइनस x माइनस 6, चलो ऐसे लिख देता हूं, x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 माइनस x माइनस 6, कुछ और बना देता हूं इसका मैं. ओके, माइनस 6 ऐसे लिख देता हूं, और इंटरवल बना देता हूं मैं आपका -1 से 2. ठीक है, अब इसमें आप चेक करके देख लेना क्या वेरीफाई होगी कि नहीं होगी. मेरे ख्याल से नहीं होगी, है ना. इसमें हो जाएगी, बाकी इसमें भी चेक करके देखिएगा आप. तो 3 क्वेश्चंस आपके लिए हैं, आप इनको एक बार प्लीज चेक करके जरूर देखिएगा रोल्स थ्योरम को. ठीक है, इनके जो सॉल्यूशंस हैं इन्हीं क्वेश्चंस के असाइनमेंट वाले, वो आपको इस टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे. और ये सोशल मीडिया लिंक्स हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, इस नंबर पर आप कर सकते हैं कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो. ठीक है, ये यूट्यूब का लिंक है, और ये जो टेलीग्राम चैनल है इसके ऊपर सारे नोट्स, सारे वीडियोज के लिंक्स आपको इस पर मिलते हैं. तो प्लीज इसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा, है ना. ये सब आप फ्री ऑफ कॉस्ट है आपके लिए. और इसी के साथ आज हम ये लेक्चर कंप्लीट करते हैं. रोल्स थ्योरम हमने आज पढ़ी, कल हम नेक्स्ट लेक्चर में लैग्रांजेस थ्योरम पढ़ेंगे. मीन वैल्यू थ्योरम भी कहते हैं, या फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम कहते हैं उसको. तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. थैंक यू वेरी मच.